वातावरण Wow, very good, very good. अभी अभी डिस्कस करूंगा वेदांत, वंश, मान्या, तनय, शिवांग, तेजस, रिया, व्योम, अभी. Okay. Divisible by 3 and 4, right? We know that this will be divisible by 4 only if this 5b must be divisible by 2. So number will be 52, 56, right? Only two options are there. So the value of b in this case will be either 2 or 6. Now, for a, what would require the second value is a. So second condition, this must be divisible by 3. 7 plus 2, 9 plus 1, 10 by 5, 15. Right? 15 plus a plus b. 15 plus a plus b. And we know that 15 plus a plus b must be divisible by 3. This is possible only if a plus b is divisible by 3. So a plus b may be 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, right? 0. So first value of b is 2. If I'm putting first value of b as 2, so a 0 not possible, from this 1, from this 4, from this 7, or two-digit number to ho nahi sakta, right? Means what you are getting 1, 2, 4, 2, 7, 2, right? This is first one size. Okay, is this okay? yes sir Yes, sir. Right? Now the second one. When we are saying the value of b is 6, b is equal to 6, 0 not possible, 3 not possible. For 6, it will be 0. For 9, it will be 3, 6, 9. So the value will be 0, 6. 0, 6 के बाद 3, 3, 6, 6, 6, 9, 6. How many of you got all the answer correct? Write down yes in chat. Wow. Wow, very good. Wow, very good, very good. चलेगा बेटा, तना इट्स ओके बेटा, चलेगा both way. Again, we have to go for the second one. Okay. And is equal to this much given, right? A764B. Divisible by 3 and 4. Very good, very good.
Very good. Let's start. So B could be 0, 4, or 8. Three values are possible for B, right? And this is A, 7 plus 2, 9, plus 6, 15, 15 plus 4, 19. 19 plus A plus B. So this must be divisible only if A plus B is equal to 2, right? 19 plus 2 will be 21, plus 3, that will be 5, 8, 11, 14, 17, 20 वगैरह तो मैं नहीं रख सकता क्योंकि this is a one digit number. Right? Now start with B is equal to 0. B is equal to 0, then A is either 2 or 5 or 8. So 2, 0, 2, 5, 2, 8. B is equal to 4. So A could be 1, 4, 7. So 1, 4, 4, 4, 4, 7, 4. Right? B is equal to 8. Right? So A is 0, 3, 6, 9. So 0, 8, 0, 3, 0, 8, 3, 8, 6, 8, 9, 8. So these many possibilities are there, these many answers possible for Sir, in the first one, the answer should come 20, 50, and 80. it's 0 now. Yes. तो आपने 20, 25 और 22 लिखा है इसलिए कुछ. B is second one. Okay, sir. How many of you got all this? Write down yes in chat. Sir, I have a doubt in last class question that you gave, but I didn't got the answer. What was the question, beta? Sir, it was n is equals to 7a 562b4 is divisible by third part 2 and 3. Find a comma b. So this is always divisible by 2, na? This is always divisible by 2. Then sum must be divisible by 3. So addition of this will be 24 plus A plus B. 24 is already divisible. So A plus B must be 0, 3, 6 up to 18. Now you have to put the values of B, could be anything. B is 0, B is 1, B is 2, B is 3, and so on. Right? Yes, sir. This 312A5B2. Write down the answer for this. सर इसमें बहुत सारे पेयर्स है तो नंबर ऑफ पेयर्स लिख दूंगा चलेगा? चलेगा, नंबर ऑफ पेयर भी लिख दें या सिंबॉलिक भी लिख दें, वो भी चलेगा, दोनों तरह से चल सकता है. Like possible values of B in this case will be 1, 3, 5, 7, or 9. Right? If we add the number, this is coming as 3 plus 1 plus 2 plus A plus 5 plus B plus 2. 4 to 6, 6 plus 5, 11, 13. That will be 13 plus A plus B, right? 13 plus A plus B
we know that now this A plus B could be 2, 5, 8, 11, 14, 17, right? That's it. So if B is equal to 1, then A could be 1, 4, 7. If B is equal to 3, A could be 2, 5, 8, right? So in this way also you can write, na? B is 5, A is 0, 3, 6, 9. B is 7, A is 1, 4, 7, right? B is 9, A is 5, 8. This way also you can write. Is this okay? Arey wah. So for divisibility condition for 3 and 4 is okay, right? मेरे ख्याल से सबको क्लियर है. क्या बोलते हो, सबको क्लियर है? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. So now, Sir, I have a doubt. yes, beta. Sir, the questions which you gave on that cyclone wala day, ninth wala question. 9th question. इसके बाद वाले पे था. ये वाला. 4th. No, sir. Sir, The हाँ. question is A minus B the whole cube plus B minus C the whole cube plus C minus A the whole cube. so that is from modules. नहीं Yes, दिया sir. था ना उस दिन सर, क्लास कंडक्ट नहीं हुई थी. Sir, you told to do घर that पे करना. assignment. You were not able to हाँ. take the class that day. हाँ, थोड़ा सा वेट कर लो बेटा. वो उस दिन तो मैंने दिया था आपको इसके लिए ना. अभी पढ़ाऊंगा ना तो you'll get that. ना इतना Yes, sir. सिंपल. एक बार पढ़ाने के बाद देखो डिविजिबिलिटी यू आर अंडरस्टैंडिंग ना. Yes, sir. Right now. So now the next step for divisibility. Now you know the divisibility for 2, 3, 4, right? 5. What is the divisibility condition for 5? It should be Number 5 or zero or 0. zero. End with 0, yeah, 5. Divisible by 4 already done. Right, divisible by 3 already done. Right. Divisible by 5, right? We start कर लेता हूँ divisible by 5 से. Last try solving. Pardon बेटा? So last question. हाँ. So you are solving. Divisible by 5 पे मैं आ गया. It's required to solve. No, sir. I have solved the question. हाँ, मतलब So I मुझे just थोड़ा want to ask, sir, we have to write all the values or not? that's like symbolic way you can write now, like A is equal to this, then all the values are this and this, right? So like that we have to write from A equals to 1 to 0, means 0 to 9. Okay, and same for B, sir. B also. Oh. Divisible by 5 if unit place is 0 or 5. Number will be divisible by 5, right? N is equal to 215A 72B is divisible by 15. Find A and B.
टेक योर टाइम। लास्ट जो पढ़ाया था और अभी जो बताया दोनों को मिक्स कर दिया मैं। Sir, we only need to find A and B, nor A comma B. एक ए एंड बी, ए कॉमा बी चलेगा बेटा दोनों। Sir, done. वेरी गुड, वेरी गुड। Sir, here you have written 15, no? यस बेटा 15। यस I just forgot to tell you, sir. Actually, in the MCQs which you gave in the sir, when you send it on the WhatsApp group, sir, I Mhm. couldn't solve many of them from 1B. जस्ट वेट ना, I'll teach ना, नो प्रॉब्लम। So this is the second lecture only, no? हाँ, this is second lecture। Okay, sir. Yes, few of the students have already done like few questions now. That's the reason I have sent. One by one, I'll teach everything. No problem. You are understanding this now? What I am teaching? Yes, sir. This I'm understanding. Composite number. Then we'll get that. No problem. Okay, sir. See, this will be divisible by 15 only if B could be either 0 or 5. Right? Now, 2 plus 1 is 3. 3 plus 5 is 8. 8 plus A plus 7 plus 2, 9 plus B. 8 plus 7, 15, 17. 17 plus A plus B, right? 17 plus A plus B. Sum. Right? So this will be 1, 4, 7, 11, 14, 17. Right? So if B is equal to 0, A is 1, 4, 7, that's it. If B is equal to 5, A is 2. 1 and 4 may we can't take, right? Because the value will be negative. So B is equal to right 2, 6, 9. That's it. How many of you are getting this? Sir, got the same answer. 2, 5, 8. So 258. Even I got 258. Sir, even I got 258. Just 2, 5, 8. Yeah.
Here I have written this 16. That's the reason here it's coming. Because वो 3 का मल्टीपल ही जाना चाहिए, राइट? नंबर में चेंजेस नहीं आने चाहिए, राइट? Okay, so this is divided by 5. So now you know 2, 3, 4, 5, 6. 7 को भी ब्रेक देता हूँ. You know 8 divisible by 8. Yes, sir. 2 and 4. 2 and 4 Divisible नहीं. by 2 by 2. The and last two digits should be divisible by 8. और Or last 3 digits हाँ, will be divisible by it. और 8 last 3 digits must be divisible by 8. Remember this or note down this. For 9, sum of the digits must be divisible by 9. जैसा 3 का होता था वैसे ही है, but 9 हो गया. Sir, Yes. in the previous question, A can be any whole number from 0 to 9, no? Because the divisibility of 5, the end number should be 0 to 5. So A can be any whole number, right? और 5 है बेटा. 0 और 5 ना? Not Yes, sir. B would be 0 or B would be 5. Either B is 0 or B or 5. So one time you are taking B as 0, other time you are taking B as 5. Right? Okay, sir. Now, note down this, please. Divisible by 8 and 9. Done, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Divisible by 7 थोड़ा अलग चला जाता है बेटा, पूछता नहीं एग्जाम में. रुको मैं पहले कंप्लीट कर लूं फिर 7 का बताता ना. So n is equal to
right? First question में only divisible by 8, second question में divisible by 9, third question में divisible by 72. Then you have to find divisible like 5 values of A and B. Very good, very good. Very good, Tejas. All three required. Third वाला is very good, right? फर्स्ट सेकंड निकालना ही पड़ता है, इसलिए मैंने तीनों एक साथ में दे दिया कि एक ही क्वेश्चन में मैं कंसेप्ट क्लियर कर पाऊं. टेक योर टाइम. सर ए और बी का वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं हो सकता ना?
अभी करता हूं बेटा. See, divisible by 8 and divisible by 9. Divisible by 8 means last 3 digit of the number must be divisible by 8. And divisible by 9 is same as the sum of the digits must be divisible by 9, so the number will be divisible by 9. Okay. Yes, sir. Done. Let's start. So divisible by 8. 75B divisible by 8. सर हम 9 का ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि if it is divisible by 3 and 6 it is divisible as 9 also. नहीं बेटा, जैसे एक चीज देखो, डिविजिबल बाई 2 नंबर, अभी मैं आऊंगा थोड़ी देर में उस बात पर भी. आपने क्या बोला कि एक नंबर डिविजिबल बाई 3 है एंड सेम नंबर डिविजिबल बाई 6 है, तो यू आर सेइंग कि दिस मस्ट बी डिविजिबल बाई 9. एक नंबर सबसे अच्छा एग्जांपल आपको ले देता हूं, 12. 12 क्या 3 से डिविजिबल है? Yes, sir. 12 क्या 6 से डिविजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. 12 क्या 9 से डिविजिबल है? No, sir. Oh. देखो गड़बड़ हो गई, राइट. तो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे पता चलता है नंबर क्या होंगे, राइट. सो 8 से डिविजिबल, राइट. 3B में B क्या होना चाहिए डिविजिबिलिटी के लिए? अब आप बताओ. Sir, 2. 2. 2 और 9. 2 और 9. 9. 2 खाली Sir, 2. 2. सर sir, सिर्फ 2. 2 रहेगा. कि फिर 8 ऐड करेंगे तो 7 Yes, 60 sir, हो only जाएगा. 2. Sir, only 4. 4 34. 34 को कैसे 8 का कौन सा टेबल पढ़ दिया? नहीं sir, only 4. 2. Sir, only 2 because sir said 2 is divisible by 8 and if we add 8 plus 2 that will be 10, which is not possible. राइट. 2, राइट. तो 32 तो 8 4 जा 32, राइट. सो उसके बाद तो 3 के टेबल में कोई आएगा ही नहीं, 3 एंड कोई नंबर, राइट. सो B की वैल्यूज तो फिक्स हो गई, 2 फॉर फर्स्ट केस. तो फर्स्ट का आंसर ओनली एंड ओनली यू आर गेटिंग एज 2. इज दिस ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. First one. Second one, divisible by 9. Add the numbers. 2 plus 1 3, 3 plus 7 10, 10 plus 5 15. Sir, बहुत ज़्यादा possible. नहीं होगा बेटा बहुत ज्यादा. देखो तो Sir, A plus B, इसे 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो sir, A plus B, 3 and 12. Sir, 3 and 12. right. And next value is 12, sir. 12 के बाद कोई value है? नहीं सर, नहीं है. No, sir. हाँ, क्योंकि ये ए बी डिजिट्स है, तो ए बी की वैल्यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0 से 9 होगी, राइट. और इससे आगे मैं बढ़ नहीं सकता, इससे छोटे में जा नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज नहीं हो सकती, राइट. सो ओनली 2 वैल्यूज आर पॉसिबल, 3 and 12, राइट. बट ए कॉमा बी के लिए, राइट, यू हैव व्हाट मेनी ऑप्शंस, क्या क्या होंगे? 3 0 Sir, A and B 0 could 3. be- 1 Sir, 3. A and B could be anything between 1 to 9, no, until and unless it satisfies these values 3 and 12. right. Second 12, so 3 9 9 3 4 8 8 4 5 7 7 5 6 6, right. Yes, sir. What we require, this must be divisible by 72. Divisible by 72 means this must be divisible by 8 as well as 9. But for 8 we have very fixed thing, right? B is equal to 2 only. Third question कर रहा हूँ, divisible by 72. B is equal to 2 and A plus B is equal to 3 and 12. B is equal to 2 to A is equal to 1. So, sir, it would be 1, 2. 1, 2, very good. But we can't say it's 10, 2.
right? Divisible by 8 as well as 9. So how many of you are getting this? Write down yes in chat, please. The last वाला आप explain कर दो फिर से 72 वाला. Divisible by 8 as well as divisible by 9, right? Divisible by 8 means b is coming as 2. Divisible by 9, it's coming as a plus b may be 3 or 12, right? To combine both this, right? So if b is equal to 2, so we are getting a is equal to 1. If b is equal to 2, so we are getting a is equal to 10. So a is equal to 10 is not possible. Okay, sir. Sir, Hmm? sir, you said that the only factor for a number to be divisible by 8 is उसके last 3 digits should be divisible by 8. Hmm. Sir, तो 2 कैसे हो सकता है? Only 2 कैसे हो सकता है? वही 4 सर होना 4 चाहिए ना? होएगा ना सर. 7 plus 5 is 12, and then when we add 4, then it is divisible by 8. You don't have to add the digits, you have to divide. Add नहीं sir. Sir divide भी करते हैं ना, तो 754 को divide करते हैं 8 से. Then I guess we get 90. You will get 94.25. 925. Decimal. Right, 754 you are saying ना. चलो ले लेता हूँ एक बार. Sir, the remainder would come to be 2. Remainder is coming ना बेटा, but 752 की जगह अगर 754 की जगह 752 लोगे आप, तो ये completely divisible होगा ना. 8 से divisible means the last 3 digit must be divisible by 8. So 752 is divisible by 8, na? Not 754. That's the reason it must be 2 only. Are you getting this? Sir 754 divided by 8 करेंगे. 8 9s are 72. फिर रिमाइंडर में 3 बचता है और फिर b जो है उसका वैल्यू 4 ले रहे हैं. अच्छा, मैं 34 लिया है. ओके, ठीक है. ना? इतने दिन हो गए ना कैलकुलेशन के कि ये गड़बड़ हो जाती है, नहीं? इट्स ओके ना? सबको क्लियर ना ये? हाँ सर. Yes, sir. राइट. एक और बनता है क्वेश्चन आई गेस. मैं सोच रहा था बढ़ जाऊंगा इससे, बट मेरे को लगता है एक और होना चाहिए, राइट? दो क्वेश्चन दे रहा हूं. राइट, फर्स्ट क्वेश्चन divisible by 72, then find a and b. Second question divisible by 36, then find a and b. Take your time. तो 564 भी है ना. 564b. Sir, Yes, beta. sir, can we once school up? Scroll up. Yes, sir. Is this okay? Yes, sir. Thank you, sir.
So due to low network connection, I couldn't understand the fifth sum of the 72 one. Can you again explain that one? Yes, beta. Just a minute, na. Just everyone is doing this. Na, I'll start with the scratch. Could you try this one, 36 wala, 9 and 4? See, for second one, you have to see that divisible by 36 means you have to take care of this as this must be divisible by 9 and 4, right? So try this for 9 and 4, right? We just 2 minutes में सब लोग attempt कर लेते हैं, then I'll go for both the questions, okay? Then should I start? Yes, sir. Okay, okay. 30 seconds more, 30 seconds more. See, first thing, what you have to understand, right? ध्यान से देखना किसका डिस्कनेक्ट हुआ था, प्लीज केयरफुल ना. The number is given and we have to see this must be divisible by 72. So this is a number that is given, right? Now we have to see this must be divisible by 72. Now 72 is composite or prime? क्या? Composite. कंपोजिट नंबर के डिविजिबिलिटी के लिए सबसे पहला आपको जो काम करना होगा ना, इसके दो को प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो निकालने होंगे, राइट? को प्राइम फैक्टर्स, व्हाट आर दिस को प्राइम फैक्टर्स? याद होगा लास्ट क्लास 9 and 8. 9 and 8. क्या क्या इसके फैक्टर्स से पहले वो देखूं. 1, 72, 2, 36, 3, right? 24. 4, 18, 6, 12, 8, 9. 9. और रिवर्स हो जाएगा फिर, राइट? यही फैक्टर्स हैं ना. अब इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर आपको दिख रहा है जिसको मैं बोल सकता हूँ दोनों को प्राइम है, मतलब दोनों का HCF 1 है, एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ एंड 72. इसको तो छोड़ ही दो. उसके बाद आ जाओ, 36 का HCF 2 है, 3 and 24 का HCF 3 है, 4 and 2 का HCF 2 है, 6 and 12 का HCF 6 है, 8 and 9 का HCF जो है वो 1. मतलब 72 की डिविजिबिलिटी अगर मुझे चेक करनी है या इसमें से दो फैक्टर्स निकालने हैं जो को प्राइम हो, तो वो फैक्टर्स है 8 and 9. इज दिस ओके? Yes, sir. राइट. 8 और 9 मतलब अगर मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो दोनों को प्राइम फैक्टर जो है उससे करूंगा, मतलब इसे 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए एज वेल एज 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, राइट? नाउ अब 8 and 9 दोनों से डिविजिबिलिटी के लिए अब आगे वर्किंग करते हैं, राइट? 4, 6, 4B is divisible by 8. 8 के लिए we know that
last 3 digit of the number must be divisible by 8, right? यहां से साफ दिखाई दे रहा है b की वैल्यूज में 0 रख सकता हूं या 8 रख सकता हूं. दिस ओके? यस सर. भी निकाल सकते हो, राइट? हाँ. 0 and 8. 9 से डिविजिबल का कंडीशन ये रहता है कि sum of the digits 7 plus 2 9, 9 plus 10 19, 19 plus 4 23, 23 plus a plus b, 23 plus a plus b. तो a plus b की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 4. तो 24 ना? 24 it will हाँ be. सर 24 है. 24 अगर ये आ रहा है, एक बार चेक कर लूं. 7 9 9 प्लस, अच्छा 10 था ये ना? ये हो सकता है. ये प्लस 14 है. A plus B can be 3 or 12. Yes sir. सेकंड वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 12, 3 and 12. तो b की वैल्यूज मेरे पास फिक्स है. अगर b की वैल्यूज मैं 0 रख रहा हूं तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2. a इज इक्वल टू 12 पे अच्छा नहीं लूंगा, राइट? एंड सेकंड में मैं बोल रहा हूं अगर b की वैल्यू मेरे पास 8 है तो a की वैल्यू -5 नॉट पॉसिबल. तो a की वैल्यू 0 then a is 3 ना. तो 0 के साथ में एक कॉम्बिनेशन मेरा बन रहा है 3 का, मतलब a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 0. एंड सेकंड मेरे पास बन रहा है 4 के साथ में 8 का, शायद कुछ ऐसा 2 कॉम्बिनेशन आपके आ रहे होंगे. तो 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर, राइट? a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8. इज दिस ओके? इसके डिस्कनेक्ट हुए थे? You Yes, understand sir. this, beta? Yes, sir. Divisible by 8 9, right? 72 भी हो गया. Now next पे चलते हैं अभी. सर Yes. सर आप एक बार बता दोगे a plus b equals to 3, 12 क्यों लिया? 3, 12 क्यों लिया? पूरे को ऐड किया डिजिट्स को मैंने ना, तो वो आया 24 प्लस a प्लस b, राइट? तो 24 में मैं क्या ऐड करूं कि नंबर डिविजिबल बाय 9 हो जाए. लोएस्ट नंबर क्या होगा? 27 जाना चाहिए, नहीं? हाँ सर. a प्लस b की वैल्यू 3 हो गई. 27 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? राइट, 36 आएगी. 27 के 36 आने के लिए व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस a प्लस b? 24 में मैं क्या ऐड करूं कि वो 36 हो जाए? 12 ऐड कर, वही दोनों. उसके ऊपर नहीं कर सकता हूँ कि डिजिट्स में a और b तो 0 से 9 तक ही होगी, राइट? ओके सर. ओके, डन एवरीवन? आगे बढ़े. यस सर. Divisible by 11.
कोई हेल्प करेंगे मेरे को? क्या होता है डिविजिबल बाय 11? यस बेटा प्लीज, पहले एक नंबर बोल. Sir, if there is a number, then the sum of the digits at its even position subtracted by the sum of its digits at the odd position should be 0 or 11. वेरी गुड. और मल्टीपल ऑफ 11. एक एक मेरे को नंबर दे दो पहले, एन एक बड़ा सा. Sir, 14641. 14641,257. मैं नहीं चाहता कोई डिविजिबल हो, आप जो बोल रहे हो वो डिविजिबल हो जाएगा, राइट. 72 मान लो ये दे दिया. तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू कि ऑड प्लेसेस वाले नंबर को पहले मैं एक ग्रुप बना लूंगा, राइट. सो ऑड प्लेसेस 5 + 2 7 + 1 8 8 + 6 14 + 1, राइट. सो ये ऐड किया मैंने 1 + 6 + 1 + 5 + 2, ये आ गया 15. सिमिलरली मैं ऐड किया अब इवन प्लेस 7 + 2 + 4 + 4, 4 + 4 + 2 + 7, 8 7 15 17, राइट. दोनों का डिफरेंस लिया. डिफरेंस लेने का मतलब है जो भी बड़ा है उससे मैंने छोटे को माइनस कर दिया, ये 2 आया. अगर ये नंबर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 होता, then only the number is divisible by 11. Divisible by 11, right? But ये 2 आ रहा है, so this number is not divisible by 11. Is this okay? Yes, sir. Yes, sir. Done? Yes, sir. राइट. इस पर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे हम लोग, राइट. आराम से इसको सोच लो. एक बार और समझाने की जरूरत है? इट्स ओके. It's okay, sir. Sir, how should we write the definition of divisibility by 11? You can write this now. So there's n equals to 1461 only. Right. Some of the digits of even places and some of the digits of odd places difference is 0 or multiple of 11, then only the number must be divisible by 11. Okay. Okay. Yes. Right. Okay, let's see. Now, so if I'm giving you one question on this, n is equals to 7 to
A52162, right, is divisible by 11, then find possible values of A. Is divisible by 11, then find possible values of A. Sir, it is 162 now. 72A 52162. No B. So from where do we start marking the digits as odd or even? Anywhere, Like the but odd Sir, I bits? got it. left anywhere. Answer me. Nee, so she will start from 7. Will 7 be on odd? No problem, beta. So if you are taking from left now, so it's odd if you're starting from 7, and if you are starting from right, then 2 will be coming at the first odd, Okay. right? So no worry, just we have to take the alternative digits as a sum, then we have to take the difference of both. Very good, beta. Done, sir. Very good. Done, sir. Sir, could you just check the answer? See. So again, a simple one. 7 plus A plus 2 plus 6. 7 plus A plus 2 plus 6. 15 plus A. Right? Second, 2 plus 5 plus 1 plus 2. 2 plus 5 plus 1 plus 2. Right? 5, 4, 9 and 10. 15 plus A minus 10 must be 0 or multiple of 11, right? So this is 5 plus A, right, is 0 or multiple of 11. So 0 होने के लिए A will be minus 5. That's not possible, right? But A is equal to C. At X, A is equal to C, you can say, right, 6 plus 5 will be 11. That is a multiple of 11. But again, A is equal to, like, 2-digit number is possible, right? 17, but A must not be 2-digit number. So only a single value, A is equal to 2. Right? A 2-digit number नहीं हो सकता, so you are getting A is equal to 6 only. Is this okay? Yes, sir. Very good. Sir. Yes. Sir, we have to add all the even values first and then all the odd values, right? नहीं, even value नहीं बेटा, even place values, right? This is first place, third place, fifth place, and seventh place. And second thing is, this is second place, मतलब second place, fourth place, sixth place, eighth place. Place value, not the digit value. Okay, sir.
Sir, Yes. so here we can subtract anyhow, right? But the value should be positive. Mm-hmm. So, sir, the value cannot be negative here, right? The difference. Difference could be negative or positive both. The difference means the greater value minus the Yes, lower, sir. So I'm asking that can we do the lower value minus greater value also? but we have to take mod for that case. Now magnitude, Okay. right? Okay, done everyone? Sir, Yes, sir. Yes. sir, Mm-hmm. sir, can you once explain why you have put a value as 6 once again? Okay. See, this must be divisible by this must be divisible by 11, right? This must be divisible by 11. So we can say if this is 5, right? So what would be the value of A such that 5 plus that value will be, right, divisible by 11. So we know that 5 plus A would be divisible by 11 if this 5 plus A is maybe 11 or 5 plus A maybe 11 or 22 or 33 or 44 and so on, maybe 0 also. But 5 plus A is equal to 0, A is equal to minus 5. You know that digit must not be negative. So this is not possible. 5 plus A is equal to 11, to A is equal to 6. That's the right one. 5 plus A is equal to 22, to A is equal to, right, 17, not possible, and so on, right? Because A is a single digit number. So only possibility what we are getting from this is this answer. Is this okay? Yes, sir. Okay, everyone. 11 का मेरे को लगता है एक दो और क्वेश्चन होने चाहिए, राइट? Yes, sir. फर्स्ट ओनली टू, बट दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन, टेक योर टाइम. So मैंने फर्स्ट का आंसर भेजा है राइट. कम अगेन बेटा, फिर से बोलो. सर मैंने फर्स्ट का आंसर भेजा है वो राइट है. डिजिट्स है ना बेटा, डिजिट्स है ना, डिजिट्स मस्ट बी 1 2 0 1 2 3 अप टू 9 ओनली ना, नॉट इन पॉइंट्स. नहीं सर, मैंने वो ऐसे 1 का आंसर 5 ऐसे लिखा है, पॉइंट में नहीं लिखा. अच्छा, दो आंसर पॉइंट में किसी ने लिखे हुए हैं, अभी चेक करता हूं. Sir, So for divisibility by 44, we have to check with 4 and 11. Yes, 4 and 11.
Very good. Let's start. First question. 5, 6, 11. अभी करता हूँ बेटा. 5, 6, 11, 13, 17 minus 2a plus 1, 3, 3 plus 11. 11 minus 8, right? 6 minus 8, right? Okay. 6 minus a may be 0 or multiple of 11. So obviously the best number for a will be 6 on. How many of you got this answer? Write down yes in chat. Very good. Very good. Areva. So alone, if it's given multiple of 11, so I guess all you know this. Now, the second question is given multiple of 44, right? 44, the first thing what we have to do, we have to take two part of this 44. 4 and 11. Very good. The co-prime number, the best possible case was said 4 and 11, right? So divisible by 4 as well as 11. So this is divisible by 11, right? So the value of B would be the 0, 4, 8. 0, 4, or 8. Right? That's the fixed values of B, right? So that this will be divisible by 4. Now, the second thing we have to do, B plus 5 plus 4 plus 2. 5 plus 4, 9 plus 2, 11. 11 plus B. And second for divisible by 3 plus A. 3 plus A. right? This will be
oops, 2 plus a plus 1, that's 3 plus a. Right? Subtract both the terms, what we are getting? 8 plus b minus a, right? One by one, we have to go for this. One by one, we have to go for this means when first value of b is 0, right? B is equal to 0, so a is equal to 8. Second value, b is equal to 4. B is equal to 4, so this is coming as 12 minus a, so a is equal to 1. Third value, b is equal to 8. 16 plus b, right? 16 minus a. So sir, A would be 5. A would be 5. So 8 0 1 4 5 8. Okay. Sir, but we are told to find the sum, no? So it would be 5, 8, and 13. So a plus b will be 8 or 5 or 13. Is this okay to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Right? Please note down. Very good. बहुत लोगों का सही है and very 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 good. This is not very simple question, right? Divisibility के cases, right? One last thing on divisibility that you have to remember. Note down this, then I'll just give you the very good chart for that. Okay, done. You can make the chart of this, right? How this will go for 2 square, and so on, right? So this 2, only you have to see the last digit, right? For 2 square means 4, we have to see last 2 digits, right? For सर मुझे divisibility by 11 में एक डाउट था. yes, पूछो बेटा. Just ask. Hello. Yes, ask please. पूछें क्या डाउट था? Are you getting my voice? Hello. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। Yes, sir, we can hear. हाँ, अब भयानक तरीके से हाँ बोला। Last 4 digit and now this last 5 digit. ध्यान देखिए, यस किसको डिविजिबिलिटी 11 में क्या डाउट था? प्लीज आस्क. Last 5 digits.
राइट, ये पावर 1 है तो लास्ट 1 डिजिट रहा, पावर 2 है तो लास्ट 2 डिजिट रहा, पावर 3 है तो लास्ट 3 डिजिट, पावर 4 2 टू द पावर जितना है उतने डिजिट। Hello, sir. Can you hear my voice? यस बेटा, एकदम लाउड एंड क्लियर। हेलो, यस सर। नहीं, वो किसी एक का आवाज आ रहा है बट इज नॉट एबल टू, मैं उसका नाम भी नहीं सर देख मेरा पाया। आवाज आ रहा है आपको? एकदम टनाटन। सर तो मतलब जैसे ही पावर का बढ़ेगा तो लास्ट नंबर्स भी बढ़ेंगे ना? वेरी गुड, तेजस ने बड़ा, ये देखो फॉर्मूला के लिए तेजस ने क्या लिखा सर, फॉर्मूला फॉर दिस वुड बी 2 टू द पावर n, राइट। अगर आप चेक करना चाह रहे हो 2 टू द पावर n से डिविजिबल है तो लास्ट 10 डिजिट digit must be divisible by 2 to the power n, right? So 2 to the power 1 से आप देख रहे हो तो लास्ट डिजिट, 2 to the power 2 से देखना चाह रहे हो तो लास्ट 2 डिजिट, 2 to the power 3 से देखना चाह रहे हो तो लास्ट 3 डिजिट, 2 to the power 4 के लिए लास्ट 4 डिजिट, 2 to the power 5 के लिए लास्ट 5 डिजिट। इज दिस ओके? राइट, Sir, what is this last 2 digits? लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर ना बेटा, सर मतलब उसका क्या? divisible by 4 only. If the number is divisible by 4, number must be divisible by 4. लास्ट 2 डिजिट 4 का देखा ना आपने, 4 एंड जो भी नंबर्स थे, n is given 2 1 4 6 2 1 5 2 6 0. So this number is divisible by 4 or not, so only you have to see last 2 digit. That's this is saying only last 2 digit you have to check. Okay. Okay sir. सर देन 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट देखने होंगे। अभी किया था, देखा ना, वही किया था हमने, लास्ट 3 डिजिट ओनली। 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट ओनली वी हैव टू चेक, एंड 32 के लिए लास्ट 5 डिजिट, 64 के लिए लास्ट 6 डिजिट, एंड सो ऑन, राइट? ओके एवरीवन? Yes. Now please note down. Divisible by 11 किनका था? देवल want to ask? शायद हाँ नमनिया सर। को डाउट था। सर मेरा वॉइस अब आ रहा है आपको? हाँ आ रहा है। सर मुझे डिविजिबिलिटी बाय 11 में एक डाउट था। जो मॉड्यूल में एग्जांपल 2 है ना, सॉल्व एग्जांपल 2, तो उसमें डिवाइड बाय 44 है, तो उसमें मुझे 4 वैल्यूज आ रही है बट एग्जांपल में 3 वैल्यूज दे रहे, पता नहीं कैसे आ रहा है। कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन बोलो एक बार फिर से, क्वेश्चन हाँ सर बोलते हो, एक मिनट। हाँ दे दो। हाँ सर, क्वेश्चन ये है कि a number is 21p 53q4 21 p 53q4 5 3 Q 4, राइट? हाँ हाँ। बोलना डिजिट और को। क्वेश्चन है number of ordered pairs pq so that number is divisible by 44. Everyone try this. Divisible by what? Divisible by 44. Take your time. Everyone try this. We should solve in graph. नो प्रॉब्लम, एक बार फिर से सब लोग सॉल्व करते हैं ना, लेवल को दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कहां पर से दिक्कत जा रही है, राइट? 2 मिनट टाइम, मैक्सिमम 2 मिनट्स यू हैव।
Sir, so if what do we have to find? We have to find P comma Q or just the values of P and Q? एक ही बात है बेटा, चलेगा। पी एन क्यू निकल गया तो सब निकल ही जाएगा ना। गो फॉर पी एन क्यू ना, तो सब के सब वैल्यूज अपने आप आ जाएंगे। वेरी गुड। शुड आई स्टार्ट? मैं स्टार्ट करूं? ओके, 30 सेकेंड और ले लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। सी, divisible by 44. Very good, Tanay. Very good. Tejas, very good. 11 and 4. The co-prime numbers are 11 and 4. Hope everyone is getting this. So, for 4, we know that Q4 will be divisible by 4. Last 2 digit होने चाहिए 4 के लिए. 4 is a 2 square. यहाँ चार्ट भी बना के दिखाया था, right? So, Q could be either 0 or 4 or 8. इसमें क्या doubt? Deval, any doubt on this? No, sir. Right? Now, this number must be divisible by Sir, 0, 2, 4, 6, 8 पांचवा आएगा ना? हाँ बेटा, राइट, ये रहा। ठीक है, अब ये मेरे पास जैसे नंबर्स आ गए तो एक एक करके दोनों में काउंटिंग करने पड़ेंगे, राइट? ए की वैल्यूज, मतलब पी एंड क्यू की वैल्यूज कैसे भी पूछ रहा हूँ। सो इफ यू वांट टू गो फॉर ईच एंड एवरी वैल्यूज ऑन दिस, राइट? ठीक है, सो दिस इज 2 plus p plus 3 plus 4, 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, 9 plus p minus this 1 plus 5 6 plus q. So this is, we are getting 3 plus p minus q, right? Now q you have, q की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं 0, केस फर्स्ट, q is equal to 0. q को जैसे मैंने 0 किया, 3 plus p must be divisible by 11, तो p is equal to 8. Case 2, q is equal to 2, so 3 plus p minus 2, right? 1 plus p, क्या p की कुछ वैल्यूज आ पाएगी डिजिट में? 1 plus p 10 में Sir, add no is value not possible. Not possible. Possible. थर्ड, q is equal to 4, 4 रखा मैंने, q तो आ गया मेरे पास p minus 1, तो p की वैल्यू आ गई 1, राइट? फोर्थ, q is equal to 6, 6 में रखूंगा तो मेरे पास आ गई 3 आएगी, 3 की
3 तो p की वैल्यू 3, 5 q इज इक्वल टू 8, p माइनस 5 आ गई तो दिस p इज इक्वल टू 5, 6 कुछ और वैल्यूज बची मेरे पास नहीं, यही वैल्यूज आ रही है। इसमें कंफ्यूजन आ रहा है? सर एक्चुअली वो जो सॉल्व एग्जांपल था ना उसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स 3 लिखा था और q इज इक्वल्स टू 0, p इज इक्वल्स टू -3 लिखा था, इसलिए मुझे डाउट आ इसमें। -3 तो नहीं पॉसिबल ना? हाँ मतलब उन लोगों ने शायद से रॉन्ग प्रिंट हो गया है, p इज इक्वल्स टू 8 आता है ना 0 के साथ, इसलिए। ये सबसे अच्छी बात है कि यू हैव टू डिस्कस करने से पता चलता है, कई बार प्रिंटिंग वगैरह गड़बड़ होते हैं तो यू वी कैन डिस्कस। So if you are writing q equals to 2, then sir p is nothing. Sir, how is that value possible? Come again, beta. I'm asking that if q equals to 2, then p is nothing, right? Because we can't write p. So sir, q can't be a value of that number, right? Like q cannot be 2, no? Hello. Yes. Yeah. So q's value cannot be 2, no? Q not possible. For q is equal to 2, we are not getting. This will be divided by 44. Okay. Right? Now, हाँ, मैं बीच में वो छोड़ दिया था, please. First, you have written for 2, right? Now, divisible by 5, 5 square, 5 cube, 5 to the power 4 में भी यही जाएगा, right? So divisible by 5. So only you have to check the last digit. Divisible by 5 square is last 2 digits. Divisible by 5 cube is last 3 digits. Right? ये थी. Yes. राइट, 5 टू द पावर 4 में भी ये जाएगा, ख्याल रखना। 25 से डिविजिबल है तो लास्ट 2 डिजिट, अगर 25 से डिविजिबल है तो नंबर मस्ट बी डिवाइड बाय 25। मतलब हम लोगों ने एक जनरलाइज केस बना दिया, बहुत बड़ा केस, राइट। जब भी इसकी जरूरत हो 5 का 5 स्क्वायर 5 क्यूब एंड ऑल, राइट, तो यू कैन गो फॉर दैट। तो इजीली यू विल गेट दैट कि कितने भी डिविजिबिलिटी के लिए है, कितना बड़ा भी नंबर है, 5/4 5/5 के लिए भी जाता है ना। Sir, this is only applicable to some limited numbers, right? हाँ, fixed numbers are there. Yeah, so only 2 and 5 are there, or there are some more numbers? Only 2 and 5 are there. 3 and 9 का भी सेम हो जाता है। Sir, Yes, beta. sir, can you once pull up that 44 multiple? I want to see one. Yes. Done? Yes, sir. राइट, चलो मैं थोड़ा सा, मेरे को पढ़ाने तो इसके बाद में थे आपको रिमाइंडर एंड थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, बट उसमें काफी सारी बहुत सारी चीजें बतानी होती है, थोड़ा सा टाइम अधिक ले लेता है।
तो मैं एक बेसिक फॉर्मूलाज पर ही आ जाता सर हूँ। यस बेटा प्लीज। हाँ मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था सर। ये जो 5:1 5:2 है, लास्ट टू डिजिट इसका क्या सर? ये द मीनिंग ऑफ दिस ना कि if you have to check कि number is divided by 5, so you have to only check last digit of the number. If you have to Yes, check number is divided by 5 square means 25, then you have to check last two digit of the number. Now number is divided by 5 cube means you have to check last three digit of the numbers. Okay. yes sir. This is हाँ. So next what I was saying ना कि a plus b whole square का formula a minus b whole square का formula a plus b whole cube का formula a minus b whole cube का formula. Hope आप लोगों को सब ये formulas याद होंगे. हाँ सर। Yes, sir. Right? तो जल्दी से मेरे को इसका formula लिख के दिखाओ सिर्फ. एक सर दो. a square A square plus B square C square plus 2ab plus 2bc plus 2bc 2ac. plus 2ca. Very good बेटा. a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. राइट. अच्छा, हो सकता है कुछ लोगों को ये फॉर्मूला याद तो नहीं होगा, बोलना खराब लग रहा है मेरे को लगता है सभी को याद होगा, नहीं भी याद है तो आपको ये सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज दिए हुए हैं, वो पूरे फॉर्मूलाज आपको याद कर लेने हैं. इसमें जो दो के सामने प्लस है वो दोनों प्लस माइनस हो जाएगा, 2ab माइनस 2bc 2bc माइनस 2ca. वेरी गुड बेटा. एक ये फॉर्मूला आप लोग जल्दी से लिख लो तो अच्छा लगेगा मेरे को. Sir, in this everything 2ab 2bc and 2ca would be negative now. आराम से बेटा देखना, यही इसीलिए मैंने 2bc will be positive. वेरी गुड. ये लास्ट में किसने बोला था ये 2bc पॉजिटिव? सर मैंने बोला था. वेरी गुड वंस, बहुत अच्छा बच्चा. नेगेटिव नेगेटिव दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना. ना आपको ऐसे चेक करना चाहिए इसमें ए के आगे प्लस है, बी के आगे माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा. ए के आगे प्लस है, सी के आगे माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा. ये दोनों के आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा. राइट. नोट डाउन प्लीज. Sir, sir, we don't have to write those formulas, right? A plus b the whole cube, a minus b the whole cube. नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, मतलब नॉट रिक्वायर्ड. आई गेस सबको याद होगा नहीं? Yes, sir. अगर नहीं है तो प्लीज एक बार याद जरूर कर देना. राइट. काफी अधिक मैं यूज करूंगा, शायद नेक्स्ट क्लास में ही आपको काफी यूज होगा. हाँ, इसके दो तरह से फॉर्मूलाज होते हैं. एक तो इस तरह का फॉर्मूला होता है, दूसरा होता है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ब्रैकेट के अंदर सब मल्टीप्लाई हो जाता है दूसरा. Sir, a plus b a square minus ab plus b square. वेरी गुड. राइट. A minus b. Sir, इसमें सिर्फ plus ab b square. पॉजिटिव हो जाएगा और a minus b हो जाएगा. हाँ, बट जिसके लिए ये पूरी कहानी बताया हूँ वो फॉर्मूला अभी आने वाला है. पहले इतना तो नोट कर लें. सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला सबसे अधिक आपको कॉम्पिटिटिव के लिए यूज होगा वो अभी बताने वाला हूँ मैं.
डन हो गया। यस सर। मैं कौन से फॉर्मूला की बात कर रहा था? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, राइट? दिस इज a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c। फर्स्ट फॉर्म क्या बेटा? यस सर। आवाज आपकी बहुत धीमे आ रही है। Sir, now can you hear me? यस। ये किया हुआ है आप लोगों का फॉर्मूला? सर ये 8 में था पर हमें कैंसिल करवा दिया था। वही जो कैंसल कैंसल करवा दिएगा ना, जो हमें यूज होगा वही सब चीजें मैं अभी आप लोगों के लिए जुगाड़ कर रहा हूं। पहले ये a plus b plus c by 2 into a minus b the whole square plus b minus c the whole square plus c minus d the whole square। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम 3 से 4 बार ये फॉर्मूला लिखें तो आपको ये फॉर्मूला अभी तुरंत के तुरंत याद हो जाए ना। Sir, यस। sir, so this a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca is equal to half of this, no? A हाँ। minus b the whole square plus b minus c the whole square plus c minus a the whole square. क्योंकि a plus b plus c is the same for both the cases ना। कम से कम 2-3 बार लिखने की कोशिश करोगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। ये इसका यूज बहुत ही प्यारा होता है, बहुत प्यारा यूज होता है। सर क्या आप इसका डेरिवेशन फिर से सम कर सकते हैं? कुछ नहीं बेटा, मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द सेम नंबर। इफ यू मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स ना, ये फर्स्ट वाला जो गिवन है, इफ यू मल्टीप्लाई a plus b plus c with this, right, so you will get this number only। that's as simple as that। ओके सर। और सर ये नीचे वाला उसका ऊपर वाले का नेक्स्ट स्टेप ही है ना? हाँ, वो दो तरह से लिखे जाते हैं। दैट्स द रीजन आई हैव गिवन टू वेज, राइट। डन, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो, बट दिस इज द फॉर्मूला, बट हाउ टू यूज दिस, राइट। So if you'll see, if a plus b plus c is equal to 0, if a plus b plus c is equal to 0, then you can say a cube plus b cube plus c cube is equal to abc, right? First, but note down this.
Sir, Yes. sir, which formula should we use for EQ plus BQ plus CQ minus 3ABC? The first one or second one? Both. In fact, now I'm giving you the use of this na. When a plus b plus c is equal to 0, then you have to write aq plus bq plus cq is equal to 3abc first, and second, if aq plus bq plus cq is equal to 3abc, then either a plus b plus c is equal to 0, or second, b is equal to c. This or this. Either a plus b plus c is equal to 0, like vice versa is different ना. अच्छा, आप लोगों को वेबसाइट का पासवर्ड मिल गया है क्या आपके? अच्छा, तो आज आप लोग को कॉल आ जाएगा जिसमें वेबसाइट के पासवर्ड एंड आईडी पासवर्ड आप लोग को मिल जाएंगे, राइट? सर विच वेबसाइट? विच वेबसाइट? आप लोगों का एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा वेबसाइट है ITN हब का, राइट? उसमें आप लोगों के जितने भी लेक्चर्स वगैरह है ना, नेक्स्ट वीक से सब कुछ वहां पर अपलोड होते जाएंगे आपके, राइट? आपके अपने आईडी पासवर्ड रहेंगे, आपका अपना पेज रहेगा। रुको एक मिनट, मैं दिखाता हूँ आपको। आई गेस दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। एक एग्जांपल कुछ दिखाता हूँ सर। जो प्रियारेमो अच्छा सर, वो जैसे स्कूल का मॉडल रहता है वैसे? स्कूल से अच्छा यार, हम लोग कैसे कर रहा है? See, this is your website, right? रिजल्ट वगैरह है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब तो एडवर्टीजमेंट और ये रहता है, ठीक है? देखो, अब यहाँ पर एक लॉगिन आपको मिल रहा है ना, यहाँ स्टूडेंट जोन में पूरे आपके जोन है, राइट? कौन सा बैच है आपका? 2022 का है या 21-23 का है, दैट यू हैव टू सी, राइट? तो 2022 का या, बट ये है आपका लॉगिन, राइट? लॉगिन पे आप गए, ये ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आज ही मिल जाएगा सर, आज या कल में, राइट? ये आपको मिल गया ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ये आपका प्रोफाइल है, आपका नाम रहेगा, लास्ट नेम, ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, रोल नंबर वी विल प्रोवाइड, राइट? रोल नंबर हम देंगे, आपका फोटो जो रहेगा वहां पर है, एंड आपका प्रोग्रेस जो है वो यहाँ दिखता रहेगा, राइट? राइट साइड में ये नोटिफिकेशन, यू विल गेट द नोटिफिकेशन, कब एग्जाम है, जो भी छोटे छोटे नोटिफिकेशन वगैरह जो होते हैं, कब एग्जाम है आपका, या होमवर्क क्या है वगैरह वगैरह, दैट यू विल गेट देयर, राइट? ये हुआ आपका प्रोफाइल, ठीक है? यहाँ पर पूरे आपके जितने भी एग्जाम होते जाएंगे उसके मार्क्स वगैरह यहाँ पर आते जाएंगे बेटा ना, ठीक? अब नेक्स्ट है, आपको क्या दिखा दूं? पहले डाउट्स के लिए यू कैन आस्क योर डाउट फ्रॉम हियर, राइट? यहाँ पर आप गए, सेलेक्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो क्वेश्चन है टाइप करने का, टाइप कर लिया। आपको लगता है कोई पिक्चर अपलोड करना है, यहाँ जाओ, पिक्चर अपलोड के लिए आपका निकल के आ जाएगा, आप पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट किया, अपलोड कर दिया, सबमिट कर देना, क्वेश्चन हमारे को मिल जाएगा। जैसे मिल जाएगा तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, उसके बाद रहेगा उसके सॉल्यूशन साथ साथ में उसके साथ में रहेंगे, ठीक है? ओके सर। यस सर। ये डाउट्स के लिए रहा, ठीक है? होमवर्क के लिए आपका एक ये बड़ा जरूरी चीज है कि रोज आपकी क्या स्टडी हो रही है वो भी मेरे को मॉनिटर करना होता है, राइट? सो एवरी डे व्हाट यू आर स्टडिंग, कितना आपका रहा है, ये आपको होमवर्क सबमिशन रहेगा। ये सबमिशन के लिए आपका कौन सा सब्जेक्ट आपने किया वो, एंड यहाँ पर उसके साथ में ये रहेंगे, एंड ये दिखाई देगा इस कैलेंडर पे। आपका हर दिन का कैलेंडर रहेगा, यहाँ पर ये दिखाई देगा बेटा आपको, राइट? कि संडे को आपने क्या किया, क्या क्या सबमिट किया, मंडे क्या किया, ट्यूसडे क्या किया, ये पूरी चीजें यहाँ पर रहेगी। 2 महीने तक आर्काइव, 2 महीने के बाद ये आर्काइव में चला जाएगा, राइट? ठीक है, ये भी हो गया होमवर्क का, राइट? डाउट हो गया, होमवर्क हो गया। अब ये एग्जाम,
अपकमिंग एग्जाम में जाओगे आप तो आपको दिखाई दे देगा कि आपको आने वाला जो एग्जाम है, जो भी जैसे आज एग्जाम है तो वो आपको दिखाई दे देगा कि ये एग्जाम आपके पास अपकमिंग एग्जाम है, राइट। अभी कोई भी एग्जाम नहीं है तो नहीं दिखा। कंप्लीटेड एग्जाम का मतलब आपको दिख जाएगा कि कितने एग्जाम अभी तक आपने दिए हैं या कितने एग्जाम आपने नहीं दिए हैं, राइट। वो सब यहाँ पर दिखाई दे देगा आपको, राइट। सो कंप्लीटेड एग्जाम या जो भी आपके पास एग्जाम्स हैं, राइट, वो दिखाई देगा। एंड ये कोई भी पेपर पे आप जाके अपने एग्जाम को देख सकते हो एंड वहां पर आपको पूरा का पूरा आपका एनालिसिस के साथ सब कुछ दिखाई देना शुरू कर जाएगा। कैसा? कुछ कुछ ऐसा, राइट। ये आपका टेस्ट हुआ है, वो है, आपके कितने मार्क्स आए हैं, क्या रहा है, वो है, वगैरह वगैरह, राइट। यहाँ पर आपका कितना आपने अटेम्प्ट किया, इनकरेक्ट कितना है, करेक्ट कितना है, यहाँ पर कौन कौन से करेक्ट है, कौन इनकरेक्ट है, ये पूरे क्वेश्चन के साथ आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। और इन सब के साथ में एक आपको वीडियो सॉल्यूशन रहेगा कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कहीं दिक्कत हुई है, वगैरह वगैरह, तो इसके साथ में सब में एक एक वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिखाई देता रहेगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है फिर से देखना है या समथिंग, तो यू कैन गो देयर, ओके। यस सर। राइट। तो ये पूरी चीजें आपकी जो बनाई हुई है ना, वो इस तरीके से बनाई हुई है कि मतलब एक लुक्रेटिव आपको तरीका मिल जाए, आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन मिल जाए ना, कि आपका डाउट्स भी हो जाए, यहाँ पर होमवर्क भी आपका हो जा रहा है, आपकी शेड्यूलिंग भी हो जा रही है। एंड आपको मैं दिखाऊं कि आपको आपके लेक्चर्स एंड हर चीज वो कैसे दिखेंगे, वो भी दिखाता हूं थोड़ा सा। ये स्टूडेंट जोन है, राइट, ऊपर में। अब जैसे स्टूडेंट जोन पे जाओगे, लाइक कोई भी मैं एग्जाम का चला गया, इंजीनियरिंग 11th इंजीनियरिंग, ठीक है। राइट, तो 11th इंजीनियरिंग में आप जाओगे तो आपको जैसे आपका ग्रीन हाउस है, राइट, ये दिखाई देगा जितने हाउसेस हैं वो, राइट। उस हाउस में मैं जैसे ग्रीन हाउस में गया तो उसके कितने कौन कौन से क्लासेस वगैरह हुए हैं, ये आप लोगों के सीनियर का है, राइट। आपके कौन कौन से क्लास हुए हैं वो सब आपको दिखाई देने लगेगा, राइट। यहां पर मैंने जैसे दबाया तो आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड आप दोगे तभी आपका हाउस का वहां पर वीडियो या जो भी चीजें हैं वो खुल के आपके सामने आएंगी, राइट। तो देन यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए। इज दिस ओके? यस सर। यस सर। आपका वीडियोस, आपका जितना मैं जो लेक्चर नोट्स हैं वो, आपके असाइनमेंट एंड एवरीथिंग विल बी इन वेबसाइट ओनली, राइट। आपको होमवर्क जो सबमिशन करना है तो ये इस वीक में ये पूरी की पूरी वर्किंग हो जाएगी, आपको सब मिल जाएगा। इसके साथ में आप लोगों को एक छोटा छोटा ग्रुप में डिवाइड करेंगे, राइट, वो भी इस वीक में आप लोगों को मिल जाएगा। दैट्स कॉल्ड मेंटरशिप ग्रुप ना, डाउट एंड मेंटरशिप ग्रुप, राइट। उसमें आप लोगों का जो क्लास रहेगा वो आफ्टरनून टाइम पे उसका क्लासेस आपको लगेंगे, राइट। उसमें हम लोगों को आपस में डिस्कशन आपको चाहिए, सर टाइम टेबल कैसे बनाए, सर ये क्वेश्चन में दिक्कत जा रही है, बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है करने की ना, तो उसके लिए एक आपको डाउट एंड मेंटरशिप सेशन लगेगा, ठीक है। ओके सर। उसके बाद जब मतलब ये मंथ करीब करीब कंप्लीट हो गए, 15 जून से 20 जून में आपको एक मेंटर आपको असाइन किया जाएगा, जो हम में से ही कोई ना कोई एक सीनियर फैकल्टी होगा, जिसके साथ आपको 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। आपको कैसे पढ़ाई करना है, कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ और मेहनत होनी चाहिए, ये सब वो डिस्कस कर पाए, ठीक है। ओके सर। राइट, तो ये ओवरऑल एंड टू एंड एक सॉल्यूशन बनाने की प्रोसेस है। ओ सभी दिखा होगा, अच्छे से पता चल गया होगा ये क्या हो रहा है आप लोग। पर पे नहीं करना ना क्या बेटा?
अभी डिस्कॉर्ड पे वो डाउट सॉल्विंग रूम और वो सब था होमवर्क सबमिशन वहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां भी कर सकते हो, यहाँ भी। हाँ? ये आपको जैसे 2-3 दिन में पूरा आपको आईडी वगैरह मिल जाएगा, सब स्मूथ हो जाएगा, तो आप दोनों में से जहां पर भी चाहोगे कर सकते हो ना, नो प्रॉब्लम। सर हमारे जो टेस्ट होंगे वो इसी साइड पे होंगे। टेस्टिंग ना, हाँ, ओके सर। आपके जो टेस्ट होंगे वो भी इसी साइट में होंगे। अभी प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह भी इसलिए आपको करवाया जा रहा है कि आप यूज टू हो जाओ। शुरू में थोड़े बहुत दिक्कतें आती है ना, नया नया चीज है आप लोगों के लिए, उस यूज टू होने के लिए पूरा का पूरा वर्किंग करवाया जाएगा आपको। इससे एक बार यूज टू आप हो जाओ, पता चल जाए कैसे कैसे टेस्टिंग वगैरह होती है, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है सर सर रिजल्ट्स हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे बेटा, लेकिन रिजल्ट को ना हम लोगों ने ब्लॉक करके रखा है। मैं चाहूँ तो आपने टेस्ट दिया उसके मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मिल जाएंगे, बट कुछ बच्चे थोड़ा सा समझते हो, थोड़ा नटखट होते हैं, कुछ चीटिंग फिटिंग कर लेते हैं, तो हम लोगों ने उसको ब्लॉक करके मैंने रखा हुआ है कि जब सभी का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा विद इन 12 आवर्स के बाद, देन ओनली यू कैन सी रिजल्ट्स ना। सर ये जो आपने मतलब अभी KVPY और प्री RM